امریکہ کی ریاست نیواڈا کا وسیع اور سنسان ریگستان، چاروں طرف خشک زمین، دور تک پھیلے پہاڑ اور بیچ میں ایک ایسا علاقہ جہاں عام آدمی کا جانا منع ہے۔ یہ جگہ نقشوں پر تو موجود ہے، مگر کئی دہائیوں تک حکومت اس کے وجود کو ماننے سے بھی انکار کرتی رہی۔ اسی جگہ کو دنیا آج ایریا 51 کے نام سے جانتی ہے۔ کہانی کا آغاز دوسری جنگ عظیم کے بعد کے دور سے ہوتا ہے۔ دنیا دو حصوں میں بٹ چکی تھی، ایک طرف امریکہ، دوسری طرف سوویت یونین۔ یہ سرد جنگ کا زمانہ تھا، بندوقیں خاموش تھی مگر خوف بلند تھا۔ دونوں طاقتیں ایک دوسرے پر نظر رکھنا چاہتی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ دشمن کی سرزمین کے اندر جھانکا کیسے جائے۔ 1950 کی دہائی میں امریکہ کو ایسے طیاروں کی ضرورت تھی جو بہت زیادہ بلندی پر اڑ سکے، اتنی بلندی پر کہ دشمن کا ریڈار انہیں پکڑ نہ سکے۔ اسی ضرورت نے ایک خفیہ منصوبے کو جنم دیا۔ CIA اور امریکہ فضائیہ نے ایک ایسی جگہ تلاش کی جو آبادی سے دور ہو، جہاں تجربات خفیہ رکھے جا سکیں۔ نیواڈا کا صحرا اس مقصد کے لیے بہترین سمجھا گیا۔ یہ جگہ پہلے نیوکلیئر تجربات کے لیے استعمال ہوتی تھی، یہاں آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ارد گرد پہاڑ قدرتی دیوار کا کام دیتے تھے۔ اسی مقام پر ایک خفیہ فضائی اڈہ بنایا گیا۔ اسے سرکاری طور پر صرف ایریا 51 کہا گیا، کیونکہ یہ نیواڈا ٹیسٹ سائٹ کے نقشے میں ایک مخصوص نمبر تھا۔ 1955 میں CIA نے U-2 نامی جاسوس طیارہ تیار کیا۔ یہ طیارہ 70,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتا تھا۔ اس زمانے میں عام مسافر طیارے اس بلندی تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ جب یہ طیارہ آسمان میں نظر آتا تو عام لوگ اسے پہچان نہیں پاتے۔ اس کی چمک، اس کی رفتار اور اس کی غیر معمولی اونچائی لوگوں کو حیران کر دیتی۔ اسی دوران امریکہ میں اڑن تشتریوں کی خبریں پھیلنے لگی۔ لوگ کہتے کہ انہوں نے آسمان میں عجیب چیزیں دیکھی ہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ ان میں سے کئی مشاہدات دراصل انہی خفیہ طیاروں کے تھے، لیکن چونکہ حکومت ان تجربات کو خفیہ رکھنا چاہتی تھی، اس لیے وہ وضاحت نہیں کر سکتی تھی۔ خاموشی نے شک کو جنم دے دیا اور شک نے کہانیوں کو۔ 1947 میں نیو میکسیکو کے شہر روزویل میں ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ وہاں سے ایک پراسرار شے کے گرنے کی خبر ملتی ہے۔ مقامی فوجی افسر نے ابتدائی بیان میں کہا کہ فلائنگ ڈسک ملی ہے۔ اگلے ہی دن یہ بیان بدل دیا گیا اور کہا گیا کہ وہ صرف ایک موسمی غبارہ تھا۔ یہ تبدیلی لوگوں کے ذہن میں سوال چھوڑ گئی۔ کیا سچ چھپایا جا رہا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ بعد میں امریکہ حکومت نے وضاحت کی کہ وہ ایک خفیہ پروجیکٹ موگول کا حصہ تھا، جس کا مقصد سوویت یونین کے ایٹمی تجربات کی نگرانی کرنا تھا، مگر عوام کے لیے یہ وضاحت کافی نہیں تھی۔ روزویل کا واقعہ جدید UFO کلچر کی بنیاد بن گیا۔ اسی ماحول میں ایریا 51 کا نام بھی افواہوں کا حصہ بننے لگا۔ لوگ سمجھنے لگے کہ یہاں گرنے والی خلائی مخلوق کے جہازوں پر تحقیق ہو رہی ہے۔ فلموں اور کتابوں نے اس خیال کو اور تقویت دے دی۔ 1960 اور 1970 کی دہائی میں ہالی ووڈ نے خلائی مخلوق پر مبنی فلمیں بنانا شروع کر دی۔ ان فلموں میں خفیہ لیبارٹریاں دکھائی گئی جہاں سائنسدان کسی اور دنیا کی ٹیکنالوجی پر کام کر رہے ہوتے تھے۔ حقیقت میں اس اڈے پر خفیہ طیاروں کی آزمائش جاری تھی۔ U-2 کے بعد SR-71 بلیک برڈ آیا۔ یہ طیارہ اتنا تیز تھا کہ 3 گنا رفتار آواز سے بھی زیادہ رفتار پر اڑ سکتا تھا۔ اس کی رفتار تقریباً 3500 کلومیٹر فی گھنٹا تھی۔ یہ دنیا کا تیز ترین آپریشنل طیارہ مانا جاتا ہے۔ اس کا ڈیزائن اتنا منفرد تھا کہ عام لوگ اسے دیکھ کر حیران ہو جاتے تھے۔ SR-71 کی پروازیں بھی خفیہ تھی۔ جب یہ آسمان میں چمکتا ہوا نظر آتا تو لوگ سمجھتے کہ کوئی غیر زمینی چیز ہے۔ حکومت پھر خاموش رہتی۔ یہی خاموشی کہانیوں کو طاقت دینا شروع ہو گئی۔ 1980 کی دہائی میں ایک شخص منظر عام پر آیا جس کا نام باب لازار تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ ایریا 51 کے قریب ایک خفیہ مقام پر کام کر چکا ہے، جہاں مبینہ طور پر خلائی مخلوق کے جہازوں کو ریورس انجینئر کیا جا رہا تھا۔ اس نے ایلیمنٹ 115 کا ذکر کیا، جو اس وقت سائنسی دنیا میں تسلیم شدہ عنصر نہیں تھا۔ باب لازار کے دعووں نے دنیا بھر میں سنسنی پھیلا دی۔ کچھ لوگ اس پر یقین کرنے لگے، کچھ نے اسے جھوٹا قرار دے دیا۔ بعد میں سائنسدانوں نے واقعی عنصر 115 دریافت کیا، مگر وہ وہی خصوصیت نہیں رکھتا تھا جن کا لازار نے ذکر کیا تھا۔ اس کے دعووں کے حق میں کوئی ٹھوس ثبوت کبھی پیش نہیں ہوا، مگر کہانی مضبوط ہو گئی۔ ایریا 51 کے ارد گرد سیکیورٹی انتہائی سخت رہی ہے۔ اس علاقے کے حدود کے قریب خبردار کرنے والے بورڈ لگے ہوتے ہیں۔ وہاں نگرانی کے جدید نظام موجود ہیں۔ عام شہری کا داخلہ مکمل طور پر منع ہے۔ یہ سختی خود ایک راز کا تاثر دیتی ہے۔ 2013 میں CIA نے
कुछ दस्तावेजात डिक्लासिफाई की। इनमें पहली बार सरकारी तौर पर एरिया 51 का नाम तस्लीम किया गया। इन दस्तावेजात में बताया गया कि वहां U-2 और दीगर तैयारों की आजमाइश की जाती थी। इस एतराफ ने कई अफवाहों को कमजोर किया, मगर मुकम्मल राज खत्म नहीं हुआ। हुकूमत ने यह नहीं बताया कि आज वहां क्या हो रहा है। मुमकिन है कि वहां स्टील्थ ड्रोन्स, हाइपरसोनिक हथियार या नई नस्ल के तैयारों पर काम हो रहा हो। जदीद फौजी टेक्नोलॉजी हमेशा खुफिया रखी जाती है, क्योंकि दुश्मन को इसकी खबर मिल जाए तो बरतरी खत्म हो सकती है। यही वो नुक्ता है जहां हकीकत और तसव्वुर मिल जाते हैं। एक तरफ खुफिया फौजी मंसूबे हैं, दूसरी तरफ अवाम का तजस्सुस। जब मालूमात महदूद हों तो तखील अपनी जगह बना लेता है। एरिया 51 इसी इंसानी तजस्सुस का मरकज बन गया है। रेगिस्तान आज भी वही है, पहाड़ खामोश हैं, फिजाई अड्डा बदसतूर सरगर्म है, मगर अंदर क्या हो रहा है इसका इल्म चंद लोगों तक महदूद है। कुछ के लिए यह जदीद साइंस का मरकज है, कुछ के लिए कायनात का दरवाजा। एरिया 51 की कहानी हमें यह दिखाती है कि खुफिया ताकत और अवामी तजस्सुस मिलकर कैसे एक आलमी राज को जन्म देते हैं। नेवाडा के रेगिस्तान में कायम खुफिया अड्डा खामोशी से अपना काम करता रहा, लेकिन अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही थी। सर्द जंग सिर्फ हथियारों की दौड़ नहीं थी, ये मालूमात की भी जंग थी। हर मुल्क चाहता है कि वो दुश्मन की ताकत, मिसाइल प्रोग्राम और फौजी मंसूबों पर सख्त नजर रखे। इसी दबाव ने एरिया 51 को मजीद अहम बना दिया। 1960 में U-2 तैयारे का एक वाकया दुनिया के सामने आ गया। एक अमेरिकी जासूस तैयारा सोवियत यूनियन के ऊपर मार गिराया गया। इस वाकये ने साबित कर दिया कि ये खुफिया मिशन कितने खतरनाक थे। अगरचा इस हादसे का ताल्लुक बराह रास्त एरिया 51 से नहीं बताया गया, लेकिन इस तैयारे की आजमाइश और तैयारी इसी खुफिया मकाम पर हुई थी। इस वाक़े के बाद दुनिया को अंदाजा हुआ कि आसमान में आने वाली ये मशीनें सिर्फ साइंसी तजुर्बात नहीं बल्कि आलमी सियासत का हिस्सा हैं। इसी दौरान अमेरिका में UFO की रिपोर्ट्स में इजाफा होने लगा। 1952 में वाशिंगटन DC के ऊपर रडार पर अजीब सिग्नल्स नजर आए। मीडिया ने इसे उड़न तश्तरियों से जोड़ दिया। अवाम में खौफ फैल गया। हुकूमत ने वजाहत दी कि यह मौसमी हालात का असर था, मगर सवाल बाकी रहे। लोगों को महसूस होने लगा कि शायद इन्हें मुकम्मल सच नहीं बताया जा रहा। अमेरिकी फिजाइया ने 1952 से 1969 तक प्रोजेक्ट ब्लूबैक के नाम से एक तहकीकाती प्रोग्राम चलाया। इसका मकसद UFO रिपोर्ट्स का जायजा लेना था। हजारों केसेस की जांच की गई। ज्यादातर वाकयात की वजाहत कुदरती या साइंसी बुनियादों पर कर दी गई। कुछ केस ऐसे थे जिनकी मुकम्मल वजाहत ना हो सकी, मगर इनमें भी खलाई मखलूक का कोई सबूत नहीं मिला। 1969 में यह प्रोग्राम बंद कर दिया गया, लेकिन सवाल यह था कि अगर हुकूमत सब कुछ वाज़ा कर चुकी है तो फिर अफवाहें क्यों खत्म नहीं हुई। इसकी एक बड़ी वजह एतमाद का मसला था। जब रियासत कई साल तक किसी जगह के वजूद से इनकार करती रहे और बाद में तस्लीम करे तो अवामी जहन में शकूक पैदा होना फितरी है। 1970 और 80 की दिहाई में टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही थी। स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर काम शुरू हुआ। F-117 नाइट हॉक जैसे तैयारे तैयार किए गए जो रडार से बच सकते थे। इन तैयारों की आजमाइश भी नेवाडा के इसी इलाके में की गई। जब आम लोग पहली बार इनकी झलक देखते तो इन्हें यकीन नहीं आता कि ये इंसानी साख्ता मशीन है। अजीब जाविये, स्याह रंग और खामोश परवाज ने UFO कहानियों को और तकवीत दे दी। इसी दौरान 1989 में बॉब लाजार का इंटरव्यू नशर हुआ। इसने दावा किया कि वो S4 नामी एक खुफिया हिस्से में काम कर चुका है, जहां मुबैना तौर पर खलाई जहाजों पर तहकीक हो रही थी। इसने कहा कि वहां गैर जमीनी टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश की जा रही है। इसके बयान ने मीडिया में हलचल मचा दी। तहकीकी सहाफियों ने इसके तालीमी रिकॉर्ड और मुलाजमत के सबूत तलाश करने की कोशिश शुरू कर दी, मगर मुकम्मल तस्दीक ना हो सकी। कुछ मालूमात मुबहम थी, कुछ दावे साबित नहीं हुए। फिर भी इसकी कहानी ने एरिया 51 को आलमी सतह पर मशहूर कर दिया। 1990 की दिहाई में सैटेलाइट तस्वीर आम लोगों के लिए दस्तयाब होना शुरू हो गई। गूगल अर्थ जैसे प्लेटफॉर्म आने के बाद लोगों ने खुद इस इलाके को देखना शुरू कर दिया। लंबी रनवेज, बड़ी इमारतें और सिक्योरिटी की सख्ती ने तजस्सुस को जिंदा रखा। इंटरनेट ने कहानी को नई जान दे दी। ऑनलाइन फोरम्स, ब्लॉग्स और वीडियोस में लोग अपने नजरियात शेयर करने लगे। कुछ ने कहा कि हुकूमत ने खलाई मखलूक से मुआहदे किए हैं। कुछ ने दावा किया कि वहां इंसान नुमा मखलूकात रखी गई हैं। इनमें से किसी दावे के हक में ठोस सबूत पेश नहीं किए जा सके, मगर कहानियों की दुनिया में सबूत से ज्यादा तजस्सुस अहम होता है। 2019 में एक अजीब वाकया पेश आया। फेसबुक पर एक इवेंट बनाया गया जिसका नाम था
स्टॉर्म एरिया 51। यानी इसमें लिखा था कि लोग मिलकर अड्डे पर धावा बोलेंगे ताकि सच जान सकें। लाखों लोगों ने ऑनलाइन शिरकत का इजहार कर दिया। अगरचा हकीकत में चंद हजार लोग ही नेवाडा के कस्बे में पहुंचे, मगर यह वाकया इस बात की अलामत था कि एरिया 51 अब सिर्फ फौजी अड्डा नहीं बल्कि सकाफती अलामत बन चुका है। नेवाडा के करीबी शहर राचल ने इस दिलचस्पी से फायदा उठाया। वहां एलियन थीम वाले कैफे और दुकानें बन गई, सियाहत बढ़ गई। एक खुफिया फौजी मकाम अवामी दिलचस्पी का मरकज बन चुका था। इसी दौरान अमरीकी हुकूमत ने 2013 में सरकारी तौर पर कुछ दस्तावेजात जारी की जिनमें बताया गया कि एरिया 51 का असल मकसद खुफिया तैयारों की आजमाइश था। यह एतराफ अहम था, मगर इससे तमाम सवाल खत्म नहीं हुए। हुकूमत ने यह बताया नहीं कि आज वहां क्या तजुर्बात हो रहे हैं। जदीद दौर में हाइपरसोनिक हथियारों और बगैर पायलट तैयारों पर तहकीक जारी है। मुमकिन है कि ऐसी टेक्नोलॉजी की आजमाइश भी इसी मकाम पर हो रही हो। फौजी हिकमत अमली के तहत नई इजाद को खुफिया रखना आम बात है। दूसरी जंग अजीम में एटम बम का मंसूबा भी मुकम्मल राज में रखा गया था, इसीलिए खुफिया फौजी तहकीक कोई नई चीज नहीं। एरिया 51 का राज शायद खलाई मखलूक से ज्यादा इंसानी जहन के बारे में है। जब मालूमात महदूद हो, जब हुकूमत खामोश हो और जब साइंस आम फहम से आगे निकल जाए तो कहानियां जन्म ले लेती हैं। इंसान फितरी तौर पर खला को कहानी से भर देता है। रेगिस्तान की इस खामोश जमीन पर शायद सिर्फ जदीद तैयारे आजमाए जाते हों। नेवाडा का वही रेगिस्तान आज भी खामोश है, मगर दुनिया बदल चुकी है। सर्द जंग खत्म हो चुकी है, सोवियत यूनियन टूट चुका है, मगर एरिया 51 का नाम अब भी जिंदा है। फर्क सिर्फ ये है कि अब राज सिर्फ फौजी फाइलों में नहीं बल्कि इंटरनेट, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर भी गर्दिश करते हैं। माहिरीन का अंदाजा है कि ऐसे कई मंसूबे अवाम के सामने आने से पहले खुफिया मकामात पर आजमाए जाते हैं। नेवाडा का सहरा इस काम के लिए आज भी मौजू समझा जाता है, क्योंकि यहाँ आबादी कम है और फिजाई हदूद सख्ती से कंट्रोल में है। अमरीकी फिजाइया ने वक्त के साथ ये वाजिया किया है कि एरिया 51 एक टेस्टिंग और ट्रेनिंग फैसिलिटी है। 2013 में जारी होने वाली दस्तावेजात में U2 और दीगर खुफिया प्रोग्रामों का जिक्र मौजूद है। इस एतराफ के बावजूद होने वाले मौजूदा मंसूबों की तफसील आम नहीं की जाती। दिफाई हिकमत अमली के तहत नई टेक्नोलॉजी को खुफिया रखना आलमी ताकतों की रवायत रही है। जदीद दौर में मसनूई जहानत और बगैर पायलट जंगी निज़ाम पर काम जारी है। ऐसे ड्रोन जो खुद कार फैसले कर सकें, ऐसे तैयारे जो रडार से तकरीबन गायब हो जाएं और ऐसे मिसाइल जो आवाज से कई गुना तेज रफ्तार हो, ये सब आर्मी ताकतों की तहकीकी एजेंडे का हिस्सा हैं। अगर ऐसी टेक्नोलॉजी कहीं आजमाई जा रही है तो वह जगह यकीनन मुकम्मल राज में रखी जाएगी। लेकिन सवाल अब भी बाकी है कि एरिया 51 की कहानी सिर्फ फौजी तहकीक तक महदूद नहीं रही। इसकी एक वजह इंसानी नफ्सियात है। इंसान नामालूम चीजों की तरफ फितरी तौर पर खींचता है। जब कोई दरवाजा बंद हो और कहा जाए कि अंदर मत देखो तो तजस्सुस बढ़ जाता है। यही तजस्सुस कहानियों को ताकत देता है। मीडिया ने भी इस अमल में किरदार अदा किया। फिल्में, नॉवल और टीवी प्रोग्रामों ने एरिया 51 को खलाई मखलूक के अड्डे के तौर पर पेश किया। इंडिपेंडेंस डे जैसी फिल्मों ने इस तस्वुर को आलमी सतह पर फैला दिया। हकीकत और तख़ील की सरहद धुंधली हो गई। सोशल मीडिया के दौर में मालूमात की रफ्तार बेहद तेज हो गई है। कोई भी वीडियो, कोई भी दावा चंद घंटों में दुनिया भर में फैल सकता है। UFO से मुतालिक वीडियोस और मुबैना लीक्स ने बहस को जिंदा रखा है। हालिया बरसों में अमरीकी हुकूमत ने कुछ नामालूम फिजाई मुजाहिर की वीडियोस जारी की, जिन्हें UAP यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना कहा गया। इन वीडियोस में कुछ ऐसी चीजें दिखाई गई जिनकी फौरी वजाहत मुमकिन न थी, मगर हुकूमत ने वाज़ा किया कि इनका मतलब खलाई मखलूक होना जरूरी नहीं। ये फर्क समझना अहम है। नामालूम का मतलब हमेशा गैर ज़मीनी नहीं होता। कई बार टेक्नोलॉजी, कैमरे के जाविये या कुदरती मुजाहिर किसी शय को अजीब बना देते हैं। मगर जब पस मंज़र में एरिया 51 जैसा खुफिया मकाम हो तो लोग जल्दी नतीजा अखज़ कर लेते हैं। एरिया 51 के इर्द गिर्द सख्त निगरानी अब भी जारी है। सैटेलाइट तस्वीर में लंबी रनवेज, हैंगर्स और नई तामीरात देखी जा सकती हैं। वहां काम करने वाले अफराद को खास इजाजतनामा दरकार होता है। इनकी शनाख्त आम नहीं की जाती। ये सब चीज़ें सिक्योरिटी के नुक्ता नज़र से मामूल की बात हो सकती हैं, मगर अवामी जहन में यही राज को मजबूत करती हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी दीगर ममालिक के पास खुफिया तहकीकी मराकज़ मौजूद हैं। रूस, चीन और दीगर ताकतें भी अपनी जदीद टेक्नोलॉजी को राज में रखती हैं। इसलिए खुफिया फौजी मकाम होना कोई गैर मामूली बात नहीं। फ़र्क सिर्फ ये है कि एरिया 51 अवामी सकाफत का हिस्सा बन गया है। एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि एरिया 51 की कहानी ने सियाहत को फ़रोग़ दिया। नेवाडा के करीबी इलाकों में
एलियन थीम वाले साइन बोर्ड, दुकानें और कैफे आम हो गई हैं। लोग इस जगह को देखने के लिए आते हैं। इस कहानी की असल ताकत इसके राज में है। इंसान हमेशा आसमान की तरफ देखकर सवाल करता है। वो जानना चाहता है कि हम अकेले हैं या नहीं। एरिया 51 इसी सवाल की अलामत बन गया है। एक ऐसा मकाम जहां साइंस, सियासत और तसव्वुर आपस में मिल जाते हैं। रेगिस्तान की खामोशी शायद सच को अपने अंदर रखती हो, या शायद सच सिर्फ जदीद इंजीनियरिंग का कमाल हो। मगर एक बात तय है, जब तक राज बाकी है, कहानी जिंदा रहेगी। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।